Today we are studying general equilibrium expressions. Kc equilibrium constant is represented by Kc. It is the equilibrium constant when concentration of reactants and products are expressed in moles per cubic decimeter active masses. Let a general gaseous phase reversible reaction A plus B and C plus D. Then Kc is equal to molar concentration of C raised to C. ये जो coefficients हैं in balanced chemical equation, these will become the exponent when we write the equilibrium constant. Molar concentration of C raised to C, molar concentration of D product raised to D, and molar concentration of A reactant raised to A, molar concentration of B reactant raised to B. It can also be written as Kc is equal to C molar concentration of C product raised to C, molar concentration of B raised to D, molar concentration of A raised to A, and molar concentration of B reactant raised to B. Actually, equilibrium constant is concentration of product divided by concentration of reactants. These C and D are products, A and B are reactants. Now, another type of equilibrium constant is Kp. It is the equilibrium constant when concentration of reactants and products are expressed in terms of partial pressure. जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को, एक गैस है उसको आप पार्शियल प्रेशर में भी लिख सकते हैं, एक अल्टरनेट है कंसंट्रेशन का, तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको आप Kp से एक्सप्रेस करेंगे. तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्रोडक्ट रेज टू C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D प्रोडक्ट रेज टू D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रिएक्टेंट रेज टू A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रिएक्टेंट रेज टू B, partial pressure of product over partial pressure of reactant. This is the Kp equal to Kp. Now third type of equilibrium constant is Kx. It is the equilibrium constant when concentration of reactants and products are expressed in mole fraction. जब आप मोल फ्रैक्शन में ज़ाहिर करते हैं, x मोल फ्रैक्शन की सिंबल है, तो उस वक्त आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kx से शो करेंगे. Kx इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C प्रोडक्ट रेज टू C, mole fraction of D product raised to D, mole fraction of A reactant raised to A, mole fraction of B reactant raised to B. तो Kx is equal to mole fraction of product divided by mole fraction of reactants. Now fourth type of equilibrium constant is equilibrium constant is Kn. It is the equilibrium constant when concentration of reactants and products are expressed in moles. जब आप moles में शो करेंगे तो फिर आप Kn जो है ये मोल की सिंबल है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kn से शो करेंगे. तो Kn इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C रेज टू C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट D रेज टू D, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B रेज टू B. तो Kn इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. अब हमने देखना है इन सब के अंदर Kx, Kp और Kn के दरमियान रिलेशनशिप. सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, कि Kc और Kp के अंदर क्या रिलेशनशिप है. लेट अ जनरल गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन. ये एक गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये रिएक्टेंट A और ये रिएक्टेंट B. ये G जो लिख रहा हूँ ये गैस को शो कर रहा है, इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट है G. तो Kc आपके पास ऑलरेडी आपको पता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है. तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D प्रोडक्ट रेज टू D, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट रेज टू A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेंट रेज टू B. सिंस Kp इज इक्वल टू, ये भी आप पढ़ चुके हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, partial pressure of C raised to partial pressure of C product raised to C, partial pressure of D product raised to D, partial pressure of A reactant raised to A, partial pressure of B reactant raised to B. For value of partial pressure according to Dalton's law of partial pressure. ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप स्टडी कर चुके हैं. RT ओवर V जो फैक्टर है ये कांस्टेंट है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज मल्टीप्लाइड बाय RT ओवर V. अब ये जो Na ओवर Nt है ये कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर टोटल मोल्स, इट इज द मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर. दिस इज इक्वल टू Ca. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू Ca RT ओवर V. तो सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू Cb RT ओवर V. पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्रोडक्ट इज इक्वल टू C concentration of C product RT over V. Partial pressure of D is equal to CD RT over V. Put the values of partial pressure of gas A, partial pressure of
गैस बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 2। इस 2 के अंदर आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के पी सी की जो वैल्यू हमने निकाली है ये है सी कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी ओवर वी, चूंकि उसकी पावर है सी तो इस सारे की पावर सी आ जाएगी। इसी तरह पी डी जो है उसकी आपके पास वैल्यू आपने निकाली है सी डी आर टी ओवर वी, तो ये पी डी की यहाँ वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सी डी आर टी ओवर वी रेज टू डी, क्योंकि इसकी पावर डी है तो इस सारे की पावर डी आ जाएगी, डिवाइडेड बाई सी ए। पी ए की वैल्यू जो है ये आपने निकाली है सी ए आर टी ओवर वी, तो सी ए आर टी ओवर वी रेज टू ए, क्योंकि इसकी पावर जो है पी ए की ए है तो इस सारे की पावर ए आ जाएगी। इसी तरह पी बी की वैल्यू आपने निकाली है पी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी ओवर वी, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पी बी की जगह सी बी आर टी ओवर वी पुट कर दिया, इस पावर बी है तो इसकी सारे की पावर बी आ जाएगी। अब इसमें से कॉमन ले लें सी को अप्लाई करके इसकी पावर को, तो ये सी इस पावर इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसकी पावर सी आ जाएगी, तो सी कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, तो डिवाइडेड बाई सी ए को भी आप इसकी पावर ए और इसकी पावर बी है इसको मल्टीप्लाई कर लें तो सी ए पावर ए मल्टीप्लाइड बाय सी बी पावर इसकी बी है तो बी आ जाएगी। इसी तरह आर टी पावर सी ओवर वी की पावर सी आ जाएगी, आर टी ओवर वी की पावर डी आ जाएगी। ये दोनों कॉमन है तो इसका मतलब इसको कॉमन लेंगे आर टी ओवर वी, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी, तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा आर टी ओवर वी ए प्लस बी। फिर आप इसमें से कॉमन लेंगे तो जो पावर होती है वो ऊपर, जैसे आपके पास ए है और ये बी है या दूसरा भी ए है, इसकी पावर है सी, इसकी पावर है डी, तो आप ये लिख सकते हैं ए कॉमन ले लें तो सी प्लस डी। इसी तरह अगर है ए की पावर सी डिवाइडेड बाई है ए की पावर बी, तो आप क्या करेंगे ए को जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा सी माइनस बी, यानी जो रेक्टेंट है जब वो कॉमन लेंगे तो ऊपर माइनस हो जाते हैं। तो आपके पास इसी तरह ये सी और डी जो है ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों आर टी ओवर वी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर सी है इसकी पावर डी है तो पावर कॉमन लेंगे, इसको आर टी ओवर वी को कॉमन लेंगे तो पावर जमा हो जाएंगी। नीचे भी आर टी ओवर वी है तो ये आर टी ओवर वी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। अब फिर आर टी ओवर वी कॉमन लेंगे तो फिर आपके पास सी प्लस डी, ये नीचे वाली जो पावर थी आर टी और वी की ऊपर जाके माइनस हो गई तो ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई के पी इज इक्वल टू सी रेज टू सी डी रेज टू डी और सी ए रेज टू ए, सी बी रेज टू बी, आर टी ओवर वी इसमें से सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी क्या है, ये सी नंबर ऑफ मोल्स हैं सी के और डी जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं डी के, यानी ये सी प्लस डी टोटल मोल्स हैं प्रोडक्ट के। ए प्लस बी क्या है, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट, और बी जो है मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट है, तो ए प्लस बी है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी ये आपके पास डेल्टा एन आ जाएगा। डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास डेल्टा एन कहलाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एन। तो ये आ गया सी प्लस डी, ये प्रोडक्ट के मोल हैं, और ए प्लस बी जो है ये रिएक्टेंट के मोल हैं, इसमें से माइनस किया, ये डिफरेंस ऑफ मोल्स आ गया डेल्टा एन। तो फिर इसमें डेल्टा एन की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सी रेज टू सी और सी रेज टू डी जो है, और सी ए रेज टू ए और सी बी रेज टू बी, ये शुरू में आप लिख चुके हैं इक्वेशन 1 में, ये के सी के इक्वल है। तो ये आपके पास के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, इसकी जो है वो वैल्यू पुट की तो ये डेल्टा एन आ गया। ये आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन द के पी एंड के सी। अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं, मसलन लेट सपोज आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन आपके पास वो 0 के बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर हैं। जब पावर किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट की 0 हो जाए, जो भी है, जब वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो आंसर 1 के, जैसे ए की पावर 0 हो जाए तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू के सी। जब डिफरेंस ऑफ मोल्स जो हैं, यानी प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हूँ, तो आपके पास डेल्टा एन जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा व्हेन, तो इम्प्लाइज दैट डेल्टा एन इज 0। तो ये आपके पास जब डेल्टा एन इसकी पावर 0 करेंगे तो आर टी जो है इसका 1 आ जाएगा, तो के पी इज इक्वल टू के सी। तो यहाँ तक हमने बेटे पढ़ लिया। ये एन पी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, एन आर को मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर होंगे तो आप माइनस करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, डेल्टा एन की वैल्यू
ज़ीरो आ जाएगी। डेल्टा एन की वैल्यू जब किसी भी वेरिएबल की ज़ीरो हो जाएगी, जैसे ए की पावर ज़ीरो आ जाए तो ये 1 के इक्वल आ जाता है ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट किए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।